Recording start. Hello. आवाज आवे છે ભાઈ બધાને? Yes, sir. Yes, sir. जो लास्ट टाइम अपने 7.1 exercise up to 20 some solved. Now 21 and 22. Look in your textbook. Only 2 examples. There are MCQ questions. You can write in your side page also. Write down the antiderivative of. You have to solve what is antiderivative of root x plus 1 by root x. Antiderivative mean integration. What is integration of root x plus 1 by root x? So how you integrate? Pankaj? Hello? Yes, sir. What is integration of root x plus 1 by root x? Integration of root x means x raised to half. Yes, sir. See, so you write in the half next step, integration of x raised to power 1 by 2 plus 1 by root x means x raised to power minus 1 by 2. Agreed? Yes, sir. Now you know formula to integrate the function. What is x raised to n integration? Integration of x raised to n. X raised to n plus 1 upon n plus 1. Right. So same way here, what integration of x raised to half? X raised to half To half plus 1 upon half upon plus half 1. plus 1. Similarly, what integration of x raised to minus half? X raised to minus half plus 1 upon minus half plus 1. Very good. And plus c as a constant of integration. Okay. So what resultant x raised to 3 by 2 upon 3 by 2 first term. What in second term? X raised to half upon half and plus c. Ultimately, the answer will be 2 upon 3 x raised to 3 by 2 plus 2x raised to half plus c. So if you watch carefully in your 4 option, then answer must be option C. Option C correct. All clear it? Yes, sir. Are you seeing? Yes, sir. Complete. Now the last number. Any problem? आदित्य कुछ बोल रहा है सर. हाँ वही मैं सुनने जा रहा हूँ. बोलो. अरे प्रेजेंट करना प्रेजेंट. एक मिनट. क्या बोलो? પ્રેઝન્ટ સ્ક્રીન કરવાનું કહે છે પંકજને. हाँ वो तो कर देगा. एक सम के लिए क्या रखने का है यार? बोल के मैंने लिख देना चाहिए था. आ गया 21. देख ले. और इसके बाद एक ही सम है 22. शुरू करें 22. हाँ सर. यस सर. हाँ देख लो. d by dx of fx is equal to 4x cube minus 3x by 4 such that f of 2 equal to 0. Then what is fx? It means आपको चाहिए fx और दिया गया है डेरिवेटिव ऑफ fx. तो रिवर्स प्रोसेस करोगे तभी fx मिलेगा. समझ में आया कुछ? यस सर. हेलो. आंसर दिया करो. मैं जो पूछने जा रहा हूं वो आप उसका आंसर दो. क्या है इसमें दिया क्या गया है? डेरिवेटिव ऑफ fx.
बराबर, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स दिया गया है 4x³ माइनस 3 अपॉन x⁴ और हमको चाहिए एफ एक्स। तो रिवर्स प्रोसेस करोगे डेरिवेटिव, तभी आपको एफ एक्स मिलेगा, बिकॉज इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर रिवर्सिबल, Yes, and sir. that's why you both side integrate. Start, all of you. Right now, d by dx of fx equal to 4x³ minus 3x⁴. Then integrate on both the sides. Integration of d by dx of fx is equal to integration of 4x³ minus 3 upon x⁴ dx. ऐसा लिखो पहले। Yes, sir. लिख दिया. लिख दिया। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स का मतलब हुआ एफ एक्स। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव दे कैंसल देयर इफेक्ट्स। व्हाई? बिकॉज एफ एक्स डेरिवेटिव एंड अगेन यू इंटीग्रेट, दैट मीन्स यू गेट एज गुड एज एफ एक्स, because that integration and derivative, differentiation and integration, they are reverse process, and that is why left hand side you have fx. Clear? Yes, sir. All clear? Are you seeing? Sir. Yes, sir. So now on right hand side you integrate as usual by formula. You have to integrate 4x³, where 4 constant, put it outside. And what integration of x³? Tell me. What is integration of x³? x⁴ upon 4. એટલે 4 into x⁴ by 4. That's good. Then second term integrate, minus 3 take out, and integration of x to the power minus 4, because x4 denominator term. So we write x⁻⁻4 and it integrate. So that is x⁻³ upon -3. Am I right? Yes, sir. And plus constant of integration c term put. So now what your fx equal to? Tell me. 4 cut, x4, then -3 cut, plus 1 upon x³. Am I right? -3 cut. Yes, sir. So we get plus c. C you have to always write, because c is constant of integration. And after then, to find value of c, you are given one clue in data. Your derivative of fx, read again data. Derivative of fx 4x³ minus 3 by x⁴, such that f of 2 equal to 0. It means fx is such that f of 2 value is 0. So here we obtain fx equal to x⁴ plus 1 upon x³ plus c, in which we put x is 2. And what f of 2? We can write 0. Follow it? Yes, sir. f of x जो दिया गया आ गया ना, f of x अभी अभी लाया हम लोगों ने, क्या आंसर आया बोलो? x⁴ plus 1 upon x³ plus c. Correct. Now f of 2 equal to 0 given. So let's find by putting x equal to 2. So left hand side become f of 2. Then right hand side become 2⁴ plus 1 upon 2³ plus c. In this way we write. Everywhere you put x is 2. Putting x equal to 2 ऐसा करके लिखो. f of 2 equal to 2⁴ plus 1 upon 2³ plus c. Now let's calculate. What f of 2 value given? 0. So you write left hand side 0. 2⁴ value what? 16. 1 upon 2³ is 1 upon 8 and plus c. Now again write, taking 8 LCM. What is sum? 16 8s are what? 128. And plus 1. So 129 plus c. So c value should be minus 129 by 8. 8. All clear? Yes, sir.
and that's value you substituting in your fx value where your c. Yes, sir. So that your final answer. So what f of x finally? X raised to 4 plus 1 upon x cube Hmm? minus 129 upon 8. Very good. So option D correct. Yes. Option D correct. Okay, now we check your homework. Last time I have given, I think, 10 sum for Yes. homework. Hmm. Have you completed, all of you? Who has not done work? બોલો આયુષી. સર મેં કર્યું છે મેં તમને પહેલા પણ કીધું થર્ડમાં ડાઉટ યસ નો બોલતી જાને, મારે પૂછું તે જવાબ આપો. કર્યું છે ને? ડાઉટ ની વાત પછી, પહેલા હું બધું પૂછું તે જ જવાબ જોઈએ. પંકજ સર નથી કરેલું. અત્યારે કરીને મોકલી દઈશ સર. નહીં, એ નહીં ચાલે. એટલે આજનું તમે હોમવર્ક નથી કર્યું એનું નામ જશે. ચાલો પંકજ, પછી આવે રાય. રાય સર રાય નથી આવેલો? આવેલો હમણાં પણ પછી નથી હમણાં ગયો લાગે છે નેટવર્ક નહીં હશે ને. પછી રાજને કે જવાબ આપે. ખાલી હા, સર. મ્યુટ કરીને બેસી રહી તે નહીં ચાલે. થોડો અવાજ બી કાઢ. ચાલુ કરે ને કે એક્સ્ટ્રા સમ જે ગઈ વખતે આપેલા લાસ્ટ ટાઈમ 10 कहाँ गयो? वो भी गायब हो गया. આવું છે છોકરાઓનું, કોઈ રેડી જ નહીં હોય. પંકજ, પેલાને લગાવ ફોન. કાં છે? ઓકે સર. રાય રાજ બંનેને. ઓકે સર. સર એનો મેસેજ આવ્યો. યસ સર તમને મેસેજ વાંચવા જાઉં હવે. હું કહી છે મેસેજમાં? વાંચની. સર એને નેટ ઇશ્યુ છે એમ કહે છે. હું કહી છે? નેટ ઇશ્યુ છે એનું થઈ ગયું છે હોમવર્ક અને કોનું નેટ કોનું? રાય કે રાજનું? રાજનું રાયનું પણ રાજનું. check થઈ ગયું છે. અને રાજનું રાયનું બધાનું થયું. ચાલો હવે શરૂઆતથી સમજીએ. All clear now. Okay, first sum we see. If you have any doubt, then ask me. Huh? First sum, look at integration 5x raised to 7 plus x plus 3. યસ સર. So its integration will be 5x raised to 8 upon 8. Now this sum Yes, not in on your screen. Remember, these are yes. extra sum I have given this. Mhm. So the first sum you look 5x raised to 7 integration 5 into x raised to 8 by 8 Yes, plus sir. integration x is x square by 2 Yes, and sir. plus integration of 3 is 3x Hmm. plus Yes, c. sir. So that is your first answer. Okay. Yes, sir. Chalo, second number integration x cube into 1 plus 2 upon x cube dx. So first of all, you make product. Inside product, you write integration x cube into 1 is x cube plus 2 because x cube cancel in second term. Yes, sir. So integration of first term x cube is x 4 by 4, right? Yes, sir. Plus integration 2 only, that is 2x and plus c, Yes, right? Okay, Yes, sir. now integration of x plus 1 upon x whole cube. So Yes. first of all, you expand this x plus 1 by x whole cube. You write then integration of x cube plus 1 by x cube plus
3 into x into 1 by x into bracket x plus 1 by x. Yes, sir. So what 3x into 1 by x, that x cancel. So you have actually x cube plus 1 by x cube plus 3 into bracket x plus 1 by x, that is 3x plus 3 by x. Okay? Yes, sir. नहीं समझ पड़ी है तो लगता रहो 3x plus 3 by x. Now I integrate. So what x cube integration? X 4 by 4. 4/4. Now second term is x raised to minus 3 power. Power. So its integration x raised to minus 2 upon minus 2. That is minus 1 upon 2x square. Then after integration of 3x is 3 into x square by 2. And 3 into integration 1 by x is log mod x. Yes, sir. Remember integration of 1 by x formula log mod x and then plus constant of integration. That is your third number. Yes. Now when you start fourth number, then numerator x5 plus 7x cube plus 2x divide by denominator x raised to 4. Every term divide by x raised to 4 first. So you get integration of first term what? X raised to 5 by x raised to 4 means x. Yes. Second term will be what? Plus 7 into 1 by x. So 7x minus 1. 7 into 1 by x. X cube cancel થઈ જાય ને x4 છે એટલે આવડે કે નહીં મગજમાં -1 7x raised to -1. હા એટલે 1 by x લખવું પડે કે x raised to -1 નું કોઈ પેલી ફોર્મ્યુલાથી નહીં થાય મગજ કસ જરાક પછી 2x by x4 છે તેને આપણે લખો કે 2 into x raised to -3. બોલો ક્લિયર? Yes, sir. હવે જુઓ પહેલું જે છે x5 by x4 ને x આવ્યો તેનું ઇન્ટિગ્રેશન x² by 2. હવે તમે જે 7x raised to -1 બોલ્યા એનું એ રીતે નહીં થાય કેમ કે not applicable in that form. X raised to n નું integration લખો x raised to n plus 1 by n plus 1 at that time n not -1 એ છે સરળ. એના માટે આપણી પાસે 1 by x નો રૂલ છે તે જ વાપરવાનો. ઇન્ટિગ્રેશન આ જે x -1 છે એ 1 by x કહેવાય ને એનું તો સ્ટાન્ડર્ડ જ છે log mod x. એટલે 7 log mod x આવે અને લાસ્ટ ટર્મ જે છે એ 2x raised to -3 છે તો પહેલા 2 બહાર રાખો અને x raised to -3 નું કરી શકાય x raised to -2 upon -2. એમાં 2 કેન્સલ થઈ જશે હવે અને -1 by x² આવશે. બોલો યસ નો? Yes, sir. Yes, sir. अब नंबर 5, x क्यूब प्लस x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1. ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा ही सम है. तो पहले दो टर्म में से x स्क्वेयर कॉमन निकाल दो तो अंदर ब्रैकेट में x प्लस 1 होगा ना प्लस अनदर x प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1. समझ में आया कुछ? बोलो आयुषी. Yes, sir. फिफ्थ सम में बोलो जरा. एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालो पहले दो टर्म में से तो x प्लस 1 हुआ क्या नहीं? हाँ सर. अब डिवाइड करोगे तो x प्लस 1 कट हो जाएगा सिर्फ x स्क्वेयर रहेगा पहला टर्म. हाँ. और बाद में जो टर्म है x प्लस 1 उसको भी डिवाइड कर दो x प्लस 1 से वो भी 1 हो जाएगा. Yes, sir. मतलब कि वो पूरे का पूरा टर्म सिर्फ x स्क्वेयर प्लस 1 बचा और उसका इंटीग्रेशन लिखो. x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x. Yes, sir. Now in the sixth number, integration of 5x plus 3 sin x plus e raised to x. The first 5 constant put outside, integrate x. That should be x square by 2. Follow? Then second term, think over second term. How you integrate 3 sin x? Take 3 outside. And what integration of sin x? Minus cos x.
and plus e raised to x इंटीग्रेशन e raised to x plus Yes, c. sir. हो गया बराबर, समझ में आया बराबर. ओके, नेक्स्ट नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into bracket cosec x plus cot x dx. Cosec x plus cot x dx. Now in this one, first of all you open bracket. What we get, integration by product of inside term, then cosec and cosec x, cosec square x plus cosec x cot x. So what integration of cosec square x? Cosec square x integration what? Whose derivative cosec square x? આમ વિચારવાનું. cot, જાણો જ કે નહીં? cot x નું ડેરિવેટિવ માઇનસ cosec square x આવે. પણ આ પોઝિટિવ cosec square x છે, તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ cosec square x must be minus cot x. Okay. Yes, sir. હવે ઇન્ટિગ્રેટ સેકન્ડ ટર્મ cosec x cot x. What is integration formula for cosec cot x? Minus cosec x. माइनस cosec x बराबर है. तो माइनस cot x माइनस cosec x प्लस c, ऐसा आंसर आएगा. हर टाइम फॉर्मूला को याद रखो, फॉर्मूला से ही सब कुछ होगा. फॉर्मूला नहीं करोगे तो आएगा ही नहीं, वो समझ के चलो. नंबर 8, इंटीग्रेशन cosec square x upon sec square x. That means what? cosec square को नीचे लिखो तो sin square x, और नीचे वाली sec square x टर्म को ऊपर लिखो तो cos square x. Cos square x. तो ये हो गया cos square x by sin square x means cot square x. उसको 1 minus cot cosec square square x. x. आया समझ में? हाँ सर, इसको 1 minus cosec square x लिखें. cosec square x minus 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि cot square x का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. लिख दिया सर. तो आ गया सर cot x plus cot x plus x. हाँ, अभी देखो मेरा आंसर. cot square x है, उसको मैं लिखूंगा cosec square x minus 1. ये समझ लो 1 minus cosec square x नहीं आएगा, cosec square x minus 1. अभी cosec square x का डेरिवेटिव लिखो, इंटीग्रेशन लिखोगे तो माइनस cot x होगा, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस x. तो आंसर हो गया माइनस cot x माइनस x प्लस c. ऐसा सुधार लो जो गलत हो तो. ओके, सर कर लिया. अभी नंबर 9 पे जाते हैं. 3 माइनस 4 cos x अपॉन साइन स्क्वेयर x. यहां सेपरेट डिवाइड कर देते हैं. 3 बाई साइन स्क्वेयर x का मतलब 3 cos x स्क्वेयर x, અને माइनस 4 cos x अपॉन साइन स्क्वेयर x का मतलब एक 1 बाई साइन सेपरेट कर लो, cosec x होगा, और cos बाई साइन का cos, मतलब 3 cos x स्क्वेयर x माइनस 4 cosec x cot x, ऐसा टर्म आएगा. बराबर है? ओपन करो, पहले डिवाइड कर दो सेपरेट, और मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो आता है कि नहीं? पहले इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे, पहला आपको अंदर सिंप्लीफाई करो. तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 cosec स्क्वेयर x माइनस 4 cosec cot आया. हाँ सर. अभी इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 cosec स्क्वेयर x का क्या हो जाएगा बोलो. अभी ये सबको बोलना चाहिए और आना ही चाहिए. cosec स्क्वेयर का इंटीग्रेशन लिखना है, 3 तो बाहर निकल जाएगा, माइनस cot x. कितनी दफे बोलेंगे हम? सर आ गया. माइनस 3 cot x. और सेकंड वाली टर्म का क्या होगा? माइनस 4 cosec cot का. माइनस 4 पहले बार लिखो एज इट इज. वो बाहर आएगा. हाँ, और cosec cot का माइनस cosec x आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये सर सिमिलर टू 7 है थोड़ा. माइनस 3 cos x प्लस 4 cosec x, ऐसा आना चाहिए. और लास्ट वाला सम, लास्ट वाला नंबर 10,
4 sin x minus 3 cos x dx, इसका इंटीग्रेशन बोलो, कौन बोलेगा? सर 4 बार निकालेंगे sin x माइनस 3 बार निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x, sin x का माइनस cos x और cos x का sin x, तो नहीं माइनस cos x नहीं 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 नहीं, आप भूल रहे हैं। देखो, ये डेरिवेटिव नहीं है, इंटीग्रेशन है। तो 4 बाहर निकालो, अभी इंटीग्रेशन sin x का होगा माइनस cos x। हाँ सर, ये तो मैंने वही बोला। हाँ वही बोला यार, मैं बोल रहा हूँ साइन का कॉस बोल देता है तू, साइन x का साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos माइनस x बोला मैंने सर मैंने फाइनल आंसर तक बोला माइनस cos 4 cos x। अरे भाई, जो है रज्जक मत करो, मैं बोलता हूँ वो सुन लो, और सही है तो जाने दो, गलत है तो सुधार दो, इसमें क्या रज्जक करने की बात है। मैंने जो सुना वो बोल रहा हूँ, तो जरा ध्यान से पढ़ो। इंटीग्रेशन 4 sin x का क्या होगा, 4 लिख दो, इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x होगा, फिर -3 ऐसा ही लिखो, और इंटीग्रेशन cos x का sin x लिखो। sin x हो गया बराबर, चलो जाने दो। मैंने जो सुना वही मैं बोलता हूं, तो फिर इसमें ये मैंने बोला ना, वो मैंने बोला, ये क्या करने की जरूरत है? गलत हो तो सुधारने का है, सुधार करेक्ट हो तो आगे बढ़ने का है। चलो फिर पंकज वो पेज, Yes, sir. हाँ वो ला दे PDF अपना, कहाँ से शुरू करेंगे ना अभी आगे। 11 पेज नंबर सबको बता वहां। देखो, अब जो नया डिस्कशन आया 7.1 कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज, अभी अभी कंप्लीट किया था, और एक्स्ट्रा सम भी इसके ऊपर हमने बता दिया। अभी आगे नई मेथड आती है, जैसे कि ये इंटीग्रेशन करने की 2 मेथड है, एक मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है और दूसरी है मेथड ऑफ पार्ट्स, मेथड बाय पार्ट्स, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स ऐसा बोला जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन वाला पहला डिस्कशन है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो सम आएगा, जैसे हमने डेरिवेटिव में चेन रूल करके ही डेरिवेटिव कर सकते थे, वैसे यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ही आप उसका इंटीग्रेशन निकाल पाओगे। तो यहाँ पहला मैंने उसका एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया। याद क्या रखना है, अगर हम मेरे पास फंक्शन fx है और x की जगह और एक फंक्शन जुड़ा गया है f ऑफ gt, देखो बराबर ध्यान से, f ऑफ x की जगह क्या हो, f ऑफ gt। क्यों चला गया फिर? पता नहीं सर। पंकज ने करने दो, ट्राई करता होगा एक पंकज। हाँ, मिनट सर। सेट कर दे फिर से। हाँ हाँ आ गया, हाँ जरा ऊपर चला। देखो, इंटीग्रेशन fx dx बराबर इंटीग्रेशन f ऑफ t लिखोगे, x की जगह t होगा, तो f ऑफ t इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टी लिखा जाएगा। मतलब कि x की जगह अगर कोई सब्स्टिट्यूशन करे t जैसा, तो dx नहीं रहेगा, अभी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, dx बाई डी टी इंटू डी टी लिखना पड़ेगा। समझे? यस और नो बोलते जाओ, समझ में आता है तो। यस सर। क्या करना है मैं तो बोल रहा हूँ वो सुनो पहले। फंक्शन f ऑफ x है, लेकिन इसमें x की जगह t सब्स्टिट्यूशन करने से वो सॉल्व होता है। तो अगर हम x की जगह t लिखेंगे तो वहां dx नहीं रहेगा, dx की जगह क्या लिखना पड़ेगा, dx बाई डी टी इंटू डी टी, जैसे चेन रूल में हम करते थे बिल्कुल वैसा ही है। वहां भी था ना कुछ कभी कि अपना फंक्शन साइन ई रेस टू एक्स है, तो फंक्शन तो साइन है लेकिन x की जगह ई रेस टू एक्स है, तो पहले हम डेरिवेटिव करते थे साइन ई रेस टू एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू ई रेस टू एक्स, और लिख देते थे कॉस ई रेस टू एक्स, और इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई करते थे। याद है कि नहीं?
हाँ सर याद है। यस सर। वो चेन रूल बोलते हैं। तो वैसा ही रूल यहाँ है कि अगर हमको इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स करना है और एक्स की जगह पे कोई सपोजिशन टी करेंगे तो आंसर उसका इजीली सेट होता है। तो उस टाइम पे जब हम एक्स की जगह टी लिखेंगे तो वहां dx नहीं रहेगा, dx की जगह क्या कन्वर्ट हो जाएगा, dx बाई dt इंटू dt। तभी वो सही कहा जाएगा। जैसे कि डेट इज करके मैंने दूसरा फॉर्म भी लिखा। मान लो कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है और x की जगह हम जी टी लिखते हैं, t को जाने दो, g ऑफ t लिखते हैं। तो x बराबर जी टी लिखा ना आपने, x बराबर जी टी लिखा कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, अभी x बराबर जी टी लिखा तो उसमें से dx बाई डी टी लाओगे तो जी डैश टी होगा कि नहीं। हाँ सर, वो उसका जी डैश। तो वो मैंने लिखा dx बाई डी टी की जगह जी डैश टी और इंटू डी टी, ऐसा होता है। तो वो आपका स्पेशल केसेस ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में मैं बताऊं कि किस तरह सपोज करना पड़ता है, सपोज करने से क्या एडवांटेज होता है, उसका स्पेशल केसेस मैंने बताया है। हेडिंग देख लो पहले, ऊपर जरा ले ले पंकज, स्पेशल केसेस ऑन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें केस नंबर 1 है, वैसे 3 केसेस है स्पेशल केसेस, वो एक्चुअली फॉर्मूला ही है, पर पहले समझ लो किस तरह उसकी प्रूफ मैं देता हूं। प्रूफ समझ में आ जाएगी तो बिल्कुल वैसा ही सम में करना पड़ेगा। जरा अच्छी तरह से देखो। मान लो कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स आपको पता है और उसका आंसर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी जैसा है, तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स क्या होगा, समझ लो बराबर ध्यान से। क्या मैं बोलना जा रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स आपको पता है और वो आंसर है एफ ऑफ एक्स कैपिटल लेटर प्लस सी, सी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो उसी टाइम पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो उसका आंसर क्या आएगा समझो। मैंने लिखा ऐसा देखो, 1 अपॉन ए, वो ए कहाँ है, वो ए एक्स प्लस बी में जो एक्स टर्म है ना उसका कोएफिशिएंट है। तो हम बोलेंगे 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड इनटू जो उधर स्मॉल एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स आंसर, तो वैसे ही स्मॉल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी पर इंटीग्रेशन भी कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी ही आएगा। बट इसमें एक्स्ट्रा टर्म क्या आया बाहर, 1 अपॉन ए आया प्लस सी, वेर ए नॉट जीरो। समझ में आ जाएगा, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं। तो समझ लिया रूल्स में क्या है, वो बराबर सुना के समझा के नहीं आप लोग। हाँ सर। हाँ, मैंने ऐसा बोला, फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है और वो कैपिटल एफ एक्स है, तो अभी सेम फंक्शन है लेकिन एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी लिखा है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी जैसा ही होगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 1 बाई ए करके लिखना पड़ेगा। पंकज वो सेट करो भाई, ये क्यों बार बार होता है ऐसा। हाँ, वहीं पे रखे हो, अभी उसकी प्रूफ देखने जा रहे हैं हम लोग। चलो मैं एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, वो सुनो पहले। हेलो, हाँ आ सर, रहा सुन है रहे मेरी हैं। आवाज? यस, मेरी रीडिंग हाँ तो सर, आ गई सर। अभी देखो, आपको एक खुला रखो, वो बंद बंद मत किया करो, मेरी आवाज सुनो और जवाब भी फौरन दो। देखो, इंटीग्रेशन आपको दिया गया कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस 3, क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो आप सब साथ में, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ब्रैकेट में 2x प्लस 3 है, तो क्या आंसर देंगे हम, तो कॉस का इंटीग्रेशन तो पता ही है साइन, समझो। यस सर। तो साइन ऑफ 2x प्लस 3 ही लिख देंगे उसका इंटीग्रेशन, लेकिन करना क्या है एक्स्ट्रा वर्क में, तो जो 2x प्लस 3 था इसमें x का कोएफिशिएंट 2 वो डिनोमिनेटर में लिखना है 1 बाई ए करके, मतलब के 1 बाई 2,
साइन ए 2x प्लस 3 ऐसा आएगा। पेज पे लिखो जरा, साइड पेज एक रफ लिख रहे हैं पेज सर, रखो, साथ में लिख रहा हूँ मैं। रफ पेज पे लिखो तो पता चलेगा, ऐसा सुना करोगे तो नहीं समझ में आएगा। और अवाज भी बेही गयो भाई, તમે તો સાંભળીને કે યસ નો ની બોલે, તદ્દન ડફોડ જેવા છે કે હાઉ ટુ રિસ્પોન્સ એ બી નથી ભાન। કેટલું બધું શીખવાનું તમને। હવે ફરી પાછો પૂછું છું, સાંભળજો। આજ સમ પાછો હું રિપીટ કરું છું, હું લખું છું ઇન્ટિગ્રેશન લખો જોઈએ બધા, ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ cos ઓફ 2x પ્લસ 3 dx। હવે આવું આવશે, એકલા cos x નહીં આવ્યા કરે, cos x નું ઇન્ટિગ્રેશન પટી ગયું, એ એક્સરસાઇઝ પૂરી થઈ ગઈ 7.1। હવે એ જ સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ હોય cos, પણ ફંક્શનની અંદર જે છે x ને બદલે 2x પ્લસ 3 એન્ટ્રી કરી, લિનિયર ફંક્શન આવે અંદર। શું હોય 2x પ્લસ 3 એટલે લિનિયર જ હોવું જોઈએ। તો તમે એનો આન્સર શું આપી શકો કે જેવી રીતે cos નું ઇન્ટિગ્રેશન sin x લખો, તે જ રીતે આનો જવાબ sin 2x પ્લસ 3 આવે। હવે ડેરિવેટિવમાં તમે ઇન્ટુ કરીને ડેરિવેટિવ ઓફ 2x પ્લસ 3 લખતા હતા, યાદ આવે છે કે એની ચેઇન રૂલ થી? તો અહીંયા એ Yes, sir. ડેરિવેટિવ ડિનોમિનેટરમાં લખવાનું છે, રેસિપ્રોકલમાં કરવાનું, એટલે 1/2 sin 2x પ્લસ 3 પ્લસ c થાય। બોલો ઓકે, બધાનો જવાબ આવો છે? આ સમજાયું? મેં આન્સર લખ્યો તે, આન્સર લખ્યો તે સમજાયો भाई? हाँ सर, आ गया। Yes, sir. अपना x का कोफिशिएंट नीचे आया डिवाइड। हाँ बस ये याद रखना है। देखो तो अब हम प्रूफ के जाए, तो प्रूफ में क्या है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स लाना है। और आपको क्या पता है, जरा नीचे लाने भाई, ऊपर पंकज, नीचे नीचे नीचे, मतलब हाँ क्वेश्चन में आ जा। क्वेश्चन कहाँ है? केस 1 का जो लिखा है वो नीचे लाने, तू ऊपर ला। चल भाई तू गलत समझ रहा है। हाँ बस बस बस, बहुत आगे मत बढ़, पर केस 1 ला, ऊपर जाने दे अभी। हाँ आ गया, देखो ऊपर पहला कंडीशन क्या लिखा है, इफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है ना, तो वो एफ एक्स की जगह यहाँ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो हम ए एक्स प्लस बी को सपोज करके सिंगल लेटर टी मुकेंगे और एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स की तरह वो एफ ऑफ टी बोला जाएगा। समझ में आया बराबर अभी? यस सर। Yes, sir. हाँ तो अभी प्रूफ में आगे बढ़ो। देखो प्रूफ में देखो, इन इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स, बस एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, साइड पे मैंने लिखा पुट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो मैंने पहला ही बता दिया कि वो dx की जगह dx बाई dt इंटू dt आएगा, याद है ना वो तो? Yes, sir. यस सर, वो याद है। हाँ तो यहाँ ए एक्स प्लस बी बराबर टी का डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मान लो कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करे तो ए का ए, एक्स का 1, बी का 0 और उधर डी टी बाई डी एक्स होगा, तो मैंने डी एक्स इस साइड पे ले लिया, ए डी एक्स बराबर डी टी किया। पता चला बराबर? हाँ सर। Yes, sir. अभी डी एक्स कितना हुआ, तो कि 1/a dt आया, और dx बाई dt लिखोगे तो 1/a। मैंने पहले ही बोला कि dx बाई dt दो तरीके से लिखा जाता है, इसीलिए मैंने दोनों तरीके से बताया। डायरेक्ट dx बाई dt बोलोगे तो 1/a आएगा, तो वैसा ही करने का है वहां, जो अपना रूल में स्टार्ट करता हूं। जो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी जो है आई बराबर, उसमें ए एक्स प्लस बी की जगह टी लिखो, तो उसी टाइम पे dx की जगह dx बाई dt लिखना है और इंटू dt करना है, बराबर है? Yes, sir. अभी आगे जाओ, आगे बढ़ो। हाँ अभी देखो dx बाई dt की वैल्यू अभी अभी हमने ढूंढ निकाली 1/a, तो वो लिख देते हैं। तो 1/a dt ऐसा हुआ, और 1/a बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन एफ टी डी, जैसे इंटीग्रेशन एफ एक्स कैपिटल एफ टी आ जाएगा। हाँ कैपिटल एफ ऑफ टी प्लस सी डैश हो जाएगा, और टी की जगह फिर से हम वैल्यू लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, जो सपोज टी थी वो। ये दूसरे पेज पे है, 12 पेज पे, जाने दे आगे। आगे जान दे।
हाँ हाँ, बस तो अभी मैंने इलस्ट्रेशन थोड़ा लिया है, वो समझ में आ जाएगा बराबर। तो मान लो कि ये रूल आपको पता चल गया। देखो ओके सर। हाँ, इंटीग्रेशन साइन ऑफ 3x प्लस 4dx लिखना है, तो मैं क्या सोचूंगा, पहले तो मैं x का सर कोएफिशिएंट देखूंगा, 3 कोफिशिएंट है बाहर डिवाइड में निकालेंगे तो 1 बाय वो 3। नीचे नीचे 3 आ जाएगा। अभी 1 साइन बाय का 3 इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x होता है ना। यस सर, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस x है, माइनस cos x। साइन 3x प्लस 4 का माइनस कॉस 3x कॉस प्लस 4 प्लस 4। प्लस सी हो गया, बाई बार 3 तो है, पता चला बराबर सबको। एकदम यस सर। सर, हाँ, आयुषी कहाँ गायब हो गई, जवाब नहीं दे रही है। Yes, हाँ, sir. इंटीग्रेशन e रेस टू 5x प्लस 7dx, उसका क्या होगा बोलो, अभी आप समझ सर जाते। e यस रेस सर, e टू, रेस टू x का e रेस टू x और हाँ अपना तो x का उसी कोफिशिएंट उसी नीचे। टाइप का e रेस टू 5x प्लस 7, नीचे क्या लिखना है, x का कोएफिशिएंट कोफिशिएंट 5, प्लस सी। बराबर हो गया ना समझ में। अभी यस हाँ सर, सर। थर्ड नंबर देखो, 1/3x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो पहला तो ये पहचानना पड़ेगा कि किसके साथ मैच करती है फॉर्मूला। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने बार बार बोला है, जैसी जैसी फॉर्मूला है उसका लिस्ट बनाते चलो और यस सबको सर, याद रखो, तभी आपको वन ये अप, पता चलेगा। ये आपकी फॉर्मूला है 1/x² प्लस a² जैसी। हाँ यस सर, सर, x स्क्वायर प्लस हाँ, x स्क्वायर। तो उसी टाइम पे हमने डिस्कस करके बताया था, उसका आंसर आएगा 1/a tan इनवर्स x/a। याद आ रहा है, नहीं आ हाँ रहा है सर। तो मैं जो बोलूं वो सुनो। उसकी फॉर्मूला ऐसी है कि इंटीग्रेशन नहीं पता है तो लिखो साइड पेज पे, 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये लिखना पड़ेगा भाई आपको। ओके सर। और उसके साथ अब मैच करें तो देखो, x² की जगह यहाँ 3x प्लस 2 होल स्क्वायर है और a² की जगह 5² है। सबको आया ध्यान में? यस सर, देखो, तो अब हम अगर फॉर्मूला यूज करने जाए तो जैसे हम 1/a लिखते हैं वैसे ही 1/ क्या आएगा, यहाँ 5 आएगा, एक की यस जगह सर, 5 है तो 1/5 लिख देंगे, फिर 10 इनवर्स भी करेंगे, लेकिन x की जगह क्या है पढ़ो वहां, फॉर 3x प्लस 2 है तो 10 इनवर्स 3x प्लस 2/5 आएगा, क्योंकि x/a लिखना है। और इसके बाद जो वहां 3x प्लस 2 था उसमें x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, 3। तो वो बाहर 1/3 लिखना पड़ेगा, ओके मतलब सर, कि 1/15 हो जाएगा, 5 3 जा, और 10 इनवर्स 3x प्लस 2/5 एंड देन, प्लस सी। बोलो समझ में आ गया सबको? यस सर, हाँ सर। ऐसा प्रॉब्लम को इसी तरह से सॉल्व करना है तो उसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, वरना आप नहीं कर पाओगे। ओके सर, अच्छा, नंबर 4 देखो, नंबर 4, अभी तक हम क्या करते थे, 5x प्लस 7 डायरेक्ट कर देते थे, जो पावर नहीं होता तो हो जाता था 5x² 2 प्लस 7x, ऐसा आंसर आ जाता था। 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर वो तो आप एक्सपांड भी कर सकते हो और हो जाता है, बराबर है। पर पावर जो ज्यादा हो तो आप एक्सपांड नहीं कर पाओगे, तभी आपको यस वही सर, फॉर्मूला काम में आएगी, x⁻n टाइप फॉर्मूला है। आपको पता है कि इंटीग्रेशन x⁻n क्या आता है, वो x⁻n प्लस 1/n+1 वही होता है। तो यहाँ भी यस सर, 5x प्लस 7 का होल स्क्वायर है तो 5x प्लस 7 का होल क्यूब बाई 3 ही आने वाला है। बात क्या करना है, बात एक्स्ट्रा वर्क बोलो, क्या करना है आगे, 5x का कोफिशिएंट बाहर निकालना 5x प्लस 7 1/5। का x का कोएफिशिएंट 5 बाहर लिखना है डिनोमिनेटर में। यस और सर, मैं 2 3 प्लस सम सी। आपको देता हूं, आप जवाब दो बैठे बैठे, समझ में तो आ गया ना रूल्स? यस Yes, सर, sir. यस सर। हाँ, तो अभी आपको आंसर देना है, बहुत सोच समझ के देना, मैं कुछ हार्ड सम नहीं पूछने वाला, आप बोलो जरा ध्यान से। देखो, इंटीग्रेशन sec² ऑफ 5x माइनस 7dx, आपको जवाब देना है इंटीग्रेशन sec² ऑफ
5x माइनस 7 ब्रैकेट कंप्लीट dx। तो क्या आंसर दोगे? आ जाना चाहिए, अभी तक तो हो जाना चाहिए। सर 1/5 5 सर into 1/5 बाहर आएगा 10 1 बाय और 5 5 फिर into फिर सर 10 10 5x 5x minus 7 बराबर plus हो 6. गया, हो गया, बराबर है। 1/5 10 ऑफ 5x माइनस 7, X वेरी plus सिंपल। क्योंकि uh, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स 10x है, तो ये दिमाग में याद रख के करने का है। बोलो हो जाएगा ना? yes sir. हाँ, और एक सम हो जाएगी, लिखो 1/2x प्लस 4 होल स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर dx। बराबर ध्यान सर से बोलो। 1/2 फिर से मैं इंटू बोलूं, फिर से मैं हाँ बोलूं, सर जरा सम बोलूं, सम सुन लो, कोई ने नहीं ओके समझा है सर तो। 1/2x प्लस 4 होल स्क्वेयर एंड प्लस 5 स्क्वेयर dx। हाँ सर आ बोलो। गया 1/2 इंटू 1/5 10 इनवर्स 2x प्लस 4/5 10 इनवर्स 2x 4 प्लस 4/5, 4/5 वेरी गुड। तो वो 1/10 हो जाएगा, 2 और 5 को प्रोडक्ट कर दो, बराबर ना? आगे और हाँ एक सर आगे लेते हैं हम सब। देखो इंटीग्रेशन 3x प्लस 4 होल रेज टू पावर 10 dx। इंटीग्रेशन 3x सर प्लस आ गया 4 होल पावर 10। एक आ गया मिनट, सर आयुषी आयुषी को बोलने दो अभी। सर आयुषी बाहर है मीटिंग के सर तो एप्शन लिखेंगे हम, क्या करें? सर अभी अभी जस्ट गई हो हाँ तो जा आ जा जा क्यों करते हैं भाई? पता नहीं सर हाँ? ये कोई बाजार में घूमने का टाइम है? पंकज आप जवाब दो। देखो 3x प्लस yes sir. 4 पावर 10 है, उसका क्या इंटीग्रेशन आएगा? 1/3 हाँ बराबर। into हाँ 3x plus 4 raised to 11 upon 11. वेरी गुड, प्लस प्लस सी 3। अभी 11 3 को प्रोडक्ट करके 33 लिख देने का, बराबर ना? Yes हाँ sir. सर यही आंसर है अच्छा अभी एक और हो जाएगी, इंटीग्रेशन e रेस टू 7x माइनस 2 dx। क्या होगा? सर e raised to 7x minus 2 divided by 5 divided by 7 हाँ 7, गुड, हो गया। तो Yes. मतलब क्या आपको रूल का पता चल गया, तो वही स्टेटमेंट था, उसका प्रूफ भी समझ लिया, तो उसका इलस्ट्रेशन भी हो गया। बस बिल्कुल इसी तरह का सम एक्सरसाइज 7.2 में आएगा, समझे? बराबर। Okay अब sir. केस नंबर 2 पे आगे बढ़े। केस नंबर 2 को समझिए। देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन f ऑफ x टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स dx हो, तो आंसर क्या आएगा? मतलब क्या है इसमें, कैसे सोचना है, कैसे याद भी रखना है, वो सुनो। इंटीग्रेशन जो फंक्शन का कोई भी पावर हो, n मतलब n चाहे तो हो, बगल में उसके साइड में जो फंक्शन एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो उसका आंसर आएगा वो फंक्शन जो था एफ एक्स रेस टू एन, उसमें एक पावर वृद्धि होगी और सेम पावर डिनोमिनेटर में आएगा। बहुत सिंपल है। Okay sir. एफ एक्स का पावर एन है और इनटू करके साइड टर्म जो लिखा है वो अंडर फंक्शन एफ एक्स जो था उसका ही डेरिवेटिव है, होना चाहिए। अगर हो ऐसा सिचुएशन हो तो आंसर आ जाएगा सीधा, एफ एक्स का जो पावर एन है उसमें एक ऐड कर दो और वही पावर डिनोमिनेटर में लिख दो। बोलो समझ में आया रूल? हाँ सर Yes, इजी sir. है हाँ, अभी ये कैसे आता है उसकी मैं प्रूफ बताने जा रहा हूं, जरा सुनो। एफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स वो है लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो इसमें हम एफ एक्स की जगह टी सपोज कर देते हैं, बराबर Okay है? sir. और दोनों साइड इन डेरिवेटिव कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे एफ एक्स है तो उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, राइट हैंड साइड टी है तो विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, तो हो गया एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ऐसा नहीं करना है और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलना है तो एफ डैश एक्स लिखोगे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे डी टी बाई डी एक्स करोगे और बाद में डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट करके ऐसा ला लोगे, बराबर है? दोनों में से कोई भी एक तरीका चलेगा। हुआ बराबर? आ गया समझ में? Yes sir.
हाँ, तो अब आगे बढ़े। देखो इंटीग्रेशन एफ एक्स रेज टू एन इंटू एफ डेस एक्स डी एक्स है अपने पास। तो अभी एफ एक्स की जगह हमने टी लाया, सपोज किया है, तो टी रेज टू एन लिखेंगे और एफ Yes, sir. डेस एक्स डी एक्स अभी अभी हमने बताया डी टी। तो हो गया ना सिंपल फॉर्म, इंटीग्रेशन टी रेज टू एन डी टी, जो हम पहचानते हैं उसको, और Yes, उसका sir. आंसर भी जानते हैं, टी रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ई, है ना। Yes, sir. बस, तो वहीं पे टी की जगह बाद में लिख देंगे, तो एफ एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ई, बहुत इजी हो गया। तो मैं बताने जा रहा हूं कि जो सेकंड रिजल्ट हमने सेकंड केस किया, उसमें वर्क जो था बहुत आसान तरीके से, और याद भी अच्छी तरह से रह जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कोई भी फंक्शन हो, उसका पावर चाहे वो हो, बगल में मतलब कि इनटू करके जो टर्म आई, वो मान लो कि डेरिवेटिव ऑफ सेम फंक्शन एफ एक्स का ही हो, तो ये रूल काम में आएगा, एफ एक्स रेज टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। अब देखो एक सम में देता हूं, लिखो। हाँ, ये रहा, इलस्ट्रेशन करके लिखा है ने, वो पहला वाला सम। देखो इसमें क्या लिखा है, Yes. इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 100x और इनटू cos x dx लिख दिया, तो उसका आंसर फौरन पता चल जाता है क्या आएगा, क्योंकि Sin raised to 101. हाँ, वो एफ एक्स Sin to 101. साइन एक्स है, होल पावर 100 है, और एफ एक्स का साइड में डेरिवेटिव होना Cos चाहिए, x. साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है ना। हेलो, हाँ सर, Yes. हाँ, तो जी उसका सर, उसका डेरिवेटिव दिया आएगा क्या आंसर। आंसर मैंने बोला वो कैसे लिखेंगे, साइन टू द पावर 100 है, उसमें एक बड़ा 101x हो जाएगा, और वही पावर नीचे आ Plus one. जाएगा 101। कंप्लीट बोलिए, Upon. हो गया बराबर। Yes, sir. अब दूसरा सम पेज Yes, sir. नंबर 13 पे है। देखो मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 एंड डिनोमिनेटर में रूट 1 माइनस एक्स के डीएक्स, ऐसा आएगा। तो आपको सर, तो डेरिवेटिव, sin इनवर्स x. हेलो, आवाज आप मत निकालो, मैं जो समझा रहा हूँ वो सुनो, महत्तम मुझको ही सुनो, जब मैं पूछूं तभी जवाब दो। साइन इनवर्स एक्स का पावर 4 है और डिनोमिनेटर में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जैसे ऐसा सम सामने आए तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स, तभी आप पकड़ पाओगे उसको, समझे। तो होता है क्या कि फंक्शन है, कौन फंक्शन है, कौन उसका डेरिवेटिव है, वो आपको जो पता चल जावे तभी आपको ये सिंपल लगेगा, वरना तो हार्ड ही लगेगा। तो इसीलिए आपको फॉर्मूला याद रखनी बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव में बहुत से फॉर्मूला हो गई है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन 6 फंक्शन की आपने लिखी है, तो उसको याद रखना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स तो -1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स तो -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का जो फॉर्म था उसका यहाँ यूज है। तो डेरिवेटिव तो पता चलना चाहिए, फिर आप बोलोगे मुझको नहीं आइडिया आई, तो कहाँ से आएगी भाई, रूल तो सिंपल है, लेकिन रूल को यूज करने Yes, के sir. लिए आपको फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला ही आप नहीं करोगे तो ये रूल तो वैसे का वैसा धड़ा ही रहेगा। देखो यहाँ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का 4 लिखा और 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मैंने मेंशन किया कि वो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स ही है, इस तरह से लिखा जाएगा। जब ये आंसर दोगे तो ये बताना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने का, साइन इनवर्स एक्स का पावर 5/5 ऐसा नहीं लिखने का। आपको ध्यान में आया है कि जो बगल वाली टर्म है वो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, वो मेंशन करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया। पता चल गया सबको। Yes, sir. हाँ सर, तो फिर वो पावर एक इंक्रीज हो जाएगा फंक्शन का और वो पावर नीचे आ जाएगा, तो सब समझ में आ गया आंसर, साइन इनवर्स एक्स टू 5/5 Yes, हो sir. गया ना। हाँ, अभी आगे थर्ड नंबर पे जाए, log x बाय एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे।
तो फॉर्मूला ही काम करता है भाई, तुरंत Differentiation of log x. पता है सर डेरिवेटिव log x का डिफरेंशियल क्या 1 by है, x 1 by x होता है. तो log x को फंक्शन बना दो और 1 by x को d by dx ऑफ log x लिखो, हो गया कि नहीं, बोलो स्ट्रक्चर। Yes sir. तो मतलब कि फंक्शन का एक पावर बढ़ेगा तो log x का अभी कौन सा पावर है, होल रेज टू 1 है, नहीं है तो मतलब कि अब एक बढ़ाओ तो 2 और डिनोमिनेटर में भी 2। 2. बहुत सिंपल है, देख लिया, Yes sir. हाँ जी वो सर। आंसर हो गया। तो ये ट्रिक थी वो सेकंड रूल की। अब केस नंबर 3 आया, इसमें क्या है, देखो इंटीग्रेशन क्या लिखा है, एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स, आंसर होता है log ऑफ एफ एक्स प्लस सी। मतलब कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन एफ एक्स है उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है एफ डेस एक्स। देख लो बराबर, ध्यान से पहचानो, एफ डेस का मतलब डेरिवेटिव। अभी देखो डिनोमिनेटर में क्या टर्म है, एफ एक्स, न्यूमरेटर में क्या लिखा है, एफ डेस एक्स। तो ये मतलब यही हुआ ना कि न्यूमरेटर में जो है वो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है। तो अगर हम ऐसा पाए कभी भी सम में कि भाई डिनोमिनेटर जो फंक्शन है उसका ही डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो डायरेक्ट आंसर लिखना है log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ मॉड एफ एक्स। कैसे, तो उसकी प्रूफ देख लो। मैंने सपोज किया पहले पुट एफ एक्स इज टी, तो एफ डेस एक्स डी एक्स क्या होगा, डी टी होगा, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव कर लो। आगे मैंने बताया अभी अभी Yes sir. एफ डेस एक्स इंटू डी एक्स, तो अदर साइड होगा डी टी। और Yes sir. अभी जो अपना सम चल रहा है ऊपर एफ डेस एक्स डी एक्स है, डिनोमिनेटर में एफ एक्स है, तो एफ डेस एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिख दो और डिनोमिनेटर में एफ एक्स की जगह टी, तो वो तो हो गया ना सिंपल फॉर्म 1 अपॉन टी डी टी। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स तो हम पहचानते हैं लॉग मॉड एक्स, तो वैसे ही ये लॉग मॉड टी हो गया और टी की जगह एफ एक्स लिख दो, तो लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी आया कि नहीं, बोलो। आ गया सर। कोई तकलीफ है, Yes sir. नो सर एकदम मस्त। समझ में आया ना बराबर। No sir. अच्छा, तो ये कैसे याद रखेंगे हम कि Yes, sir. डिनोमिनेटर फंक्शन का न्यूमरेटर में डेरिवेटिव होना चाहिए, अगर ऐसा हो तो आंसर हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर। बोलो कोई तकलीफ। नो तकलीफ। अच्छा आगे बढ़े, इलस्ट्रेशन वेरीफाई No, चेक sir. कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन आगे बढ़ाओ, पेज आगे लो। अच्छा पहला सम देखो मैंने क्या लिखा है, 1 बाई साइन स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ऐसा आ जाता है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा अपनी तरीके से देख लो, मैं जरा पानी पी लेता हूं। इस पॉइंट का कोई यूज ही नहीं है, मैंने डायरेक्ट ले लिया। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है ही नहीं, देखो पहले, समझ में आया। ऊपर जो वन Yes sir. है, वन की जगह मैंने सर। फॉर्मूला लिख दी, देखो शायद Sin में square x बनाने plus गया sin होगा square x. प्रॉब्लम। हाँ मेरी बात सुनो, शायद में जब प्रॉब्लम बनाने गया होगा तभी मेरे को ऐसा सेट नहीं हुआ, तो मैंने इस तरह का एक सम बना दिया। तो इसमें क्या हुआ, ऊपर वन है, वन को क्या लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और सेपरेट डिवाइड कर दो Yes, sir. डिनोमिनेटर में से। तो पहला वाला 1 बाई कॉस स्क्वायर का मतलब सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया, दूसरा वाला कॉस स्क्वायर एक्स कट हो Yes, गया, sir. तो 1 बाई साइन स्क्वायर मतलब कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। और दोनों का इंटीग्रेशन पता ही है, सेक्स स्क्वायर का क्या है आंसर, बोलो 10x, 10x कॉस एक्स स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स। minus cot x. इसमें न्यूमरेटर Plus डिनोमिनेटर का कोई एम नहीं है, अभी आएगा सेकंड। रोल नहीं है. आगे बढ़ो, 14 पेज पे आ जाओ, सेकंड नंबर। हाँ सिर्फ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो और पहचानो, आंसर मत देखो, क्वेश्चन ही देखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देखोगे सेकंड नंबर, ऊपर जाने दे थोड़ा। हाँ बस बस बस,
देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। देखो एग्जाम में क्या होगा, मेरी बात सुन लो बराबर ध्यान से। एग्जाम में तो आपको ऐसा लिख के नहीं देने वाले कि भाई ये रूल से गिनना है या ये रूल से गिनना है, मिक्स आएगा। आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सा रूल लगने वाला है, तभी आपको मुश्किल पड़ेगी। अभी तो यहाँ क्योंकि आपको पता है कि डिनोमिनेटर का हमको न्यूमरेटर में डेरिवेटिव चाहिए, तो उसी टाइप से आप थिंकिंग करो। अभी तो प्रॉब्लम इजी है क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है वो मन में सोचो, तो आपको आ जाएगा। डेरिवेटिव नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगा, वो तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ। डेरिवेटिव आएगा तो इंटीग्रेशन आता है। देखो लिमिट के ऊपर डेरिवेटिव डिपेंड करता है, डेरिवेटिव के ऊपर इंटीग्रेशन डिपेंड करना है। मतलब ये है, ये सीक्वेंस है, उसको तो हम कैलकुलस बोलते हैं। तो पहला लिमिट बराबर आना चाहिए, इसके बाद डेरिवेटिव आना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन पता चलेगा। तो ऐसा ही ये प्रॉब्लम है। नीचे cos x प्लस साइन एक्स है, उसका डेरिवेटिव सोचोगे तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है एंड प्लस साइन Yes, एक्स sir. का cos x है। आपको पता है ये बराबर। तो मैंने ऊपर तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो मेरे को चाहिए माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो मैंने माइनस साइन निकाल दिया। देखो कॉमन निकाल के। हाँ, ऐसा करना पड़ेगा अपने आप तो सेट होगा। देखो माइनस निकाला तो अंदर हो गया cos x माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन एक्स है। अब आप सोचो डिनोमिनेटर का ऊपर क्या है, डेरिवेटिव ही है। cos x है, sin x पहली टर्म है तो cos x है, हाँ सर, cos x का माइनस हाँ साइन वही है एक्स। सर। हाँ तो ऊपर जाने दो अभी थोड़ा। हाँ तो अब क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन मैंने नहीं लिखा, आपको लिखना है। ऊपर जो cos x माइनस साइन x है उसको क्या बताना है, d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन sin x प्लस cos x, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो आंसर आप लिखोगे माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। हो गया बराबर ध्यान में। अभी आगे मत बढ़ना, थर्ड नंबर को देखो, सिर्फ देखा करो। थर्ड नंबर पकड़ो, क्या पकड़ आती है आपको। 1/x log x dx दिया है, उसमें कैसे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसी टाइप का सम एक्सरसाइज में भी आएगा। Yes, sir. D by dx of log x 1 by x. तो सर हाँ तो पहले क्या 1 by करना x log. पड़ेगा कि 1/x ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे वाला x ऊपर ले जाओ और 1/x लिखो। आगे बढ़ो, देखो मैंने लिखा होगा, आगे जाने दे पेज। Yes. Yes. नहीं जा रहा है, जाएगा ही। हाँ बस देखो, ऊपर 1/x मैंने लिया, नीचे वाला x ऊपर कैसे लिखा वो पता चल गया सबको। हाँ ना तो बोलो भाई, नीचे वाला x हाँ सर, हाँ तो सर, x उसका डेरिवेटिव है। हाँ अभी जो 1/x है वो d बाई डी एक्स ऑफ log x लिखो ऐसी तरह से। नीचे log x है तो आंसर क्या आएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर, Yes. लॉग ऑफ log एक्स। ऑफ log x, ऐसा आएगा। देखा, जी हाँ। समझ में आया सबको। हाँ सर, पूरा पूरा आया। पंकज बार बार क्यों ऐसा होता है भाई। Yes, sir. अपने आप हो जाता है, कोई बात नहीं। चौथा ये नंबर सर सेट अपने आप हो करो। जाता है। हाँ अभी देखो चौथा नंबर सामने है, मैंने लिखा है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स डी एक्स। अभी इस टाइप का सम बुक में आ जावे, मतलब कि एक्सरसाइज में आवे, मान लो कि एग्जाम में भी आ गया, तो हम सोचते रहते हैं कि साला इसको कैसे करें। देखो इसमें कितना सिंपल ट्रिक बता दिया। ऊपर साइन साइन, नीचे साइन है, बगल में कॉस है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हमको पता ही है। तो लेट कंबाइन ऑल साइन एक्स गैदर। तो लुक एट साइन क्यूब एक्स एंड डिनोमिनेटर रूट साइन एक्स, तो ऊपर ले लो साइन क्यूब एक्स बाई साइन
x का Yes, sir. रूट साइन x का मतलब साइन रेस टू हाफ x, पावर हाफ हो गया, तो वो 3 में से कट कर दो, Yes. 3 माइनस हाफ होगा ना, Yes, तो sir. कितना आएगा 3 माइनस हाफ, 5/2। तो देखो 5/2. साइन रेस टू 5/2x इंटू कॉस एक्स dx ऐसा आ गया। बहुत देर लगती है आप लोगों को यस नो करने की, करट करना चाहिए। साइन क्यूब एक्स और नीचे रूट साइन Yes, एक्स है sir. तो ऊपर ले लिया, तो साइन का माइनस हाफ हो जाएगा, तो उधर 3 है तो 3 माइनस हाफ का मतलब 5/2। यहाँ तक तो आया क्या नहीं, पहले समझ में आना चाहिए यहाँ तक। Yes, हाँ sir. अभी देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स है ही बाजू में, Yes, तो sir. पावर कोई भी हो, मैंने बोला था ना पहले ही, बार बार मैंने बोला था, पावर चाहे वो हो, ऐसा नहीं कि एन इंटीजर ही होना चाहिए, फ्रैक्शन भी आ सकता है। कोई भी हो. साइन रेस टू 5/2x और बगल में है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो आंसर हो जाएगा, एक की वृद्धि कर दो पावर में, Yes, sir. साइन रेस टू ऊपर 7 जाने से 7/2x अपॉन upon 7 by. 7/2 मतलब 2/7। Yes, sir. बोलो आया। Yes, sir. I am. और साइड पे देखो फिफ्थ सम है, हाँ बस वो स्टैंडर्ड सम है। जब हम ये सम पूछते हैं तो कोई बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि वो डेरिवेटिव सोचता रहता है, ऊपर है ही नहीं डेरिवेटिव। e⁻²x+1 नीचे है, ऊपर e⁻²x-1 है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे तो वो e⁻²x�2 आएगा, वो नहीं है ऊपर, समझो बराबर। e⁻²x है लेकिन इंटू 2 कहाँ है, और कर भी नहीं Yes, पाते हम। इसीलिए इसमें क्या करना है, जो मैंने क्या किया है, अपर और लोअर दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया कौन सी पावर से, e⁻² से। तो जो e⁻² को डिवाइड करेंगे e⁻x से, तो e⁻x एक ही बचेगा, Yes, sir. -1/e⁻x करेंगे तो e⁻x हो जाएगा, 1 अपॉन है तो। सेम वे डिनोमिनेटर में सोच लो, e⁻x डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो, तो e⁻x प्लस e⁻x ही आएगा क्या, नहीं बोलिए। Yes, sir. I am. तो अभी आप सोचो कि डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपर में है, देखो न्यूमरेटर में है ही, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x और -x का -1 चेन रूल से, तो हो गया ना ऊपर वाला डेरिवेटिव टर्म। Yes, sir. तो ऊपर वाली टर्म हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ e⁻x प्लस e⁻x। नीचे जो है वो फंक्शन है, ऊपर है उसका डेरिवेटिव, Derivation. तो अपना रूल लगा दो, तो कौन सा आंसर आएगा बोलिए। Log. हाँ, Log. लॉग ऑफ मॉड Log e⁻x प्लस e⁻x माइनस, plus. हो गया। कौन सा पेज नंबर आया, 14। अभी देखो सम स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड, देखो बस सम मोर स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसा लिख के आया, इसमें यही रूल का यूज है, आपको पहचानना है बस। देखो अभी तक हम लोग पहचानते नहीं था कि कौन सा इंटीग्रेशन 10x dx, इंटीग्रेशन 10x dx क्या है वो नहीं पता था अभी तक, था आपको, बोलो। हम लोगों ने जो आंसर बताए थे, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन कॉस एक्स का साइन एक्स, इंटीग्रेशन sec square x then tan x, integration cos x square x then minus cot x, integration sec x tan x then sec x, and integration cosec cot then minus cot। बस इतना 6 फंक्शन था, वहां इंटीग्रेशन tan x की बात हुई नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं पता था। अभी देखो कैसे आ जाता है, देखो प्रूफ में इंटीग्रेशन tan x को हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। Yeah. फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव है, आगे बढ़ो, Cos पेज खोलो, ऊपर ले पेज। हाँ देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है ना, Yes, sir. तो मैंने क्या किया, बाहर माइनस साइन लिखी और साइन एक्स को माइनस साइन एक्स बना दिया, तो हो गया ना बराबर। Yes, sir. बाहर का माइनस वैसा ही रखो, और
ऊपर माइनस साइन एक्स वो हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। यस सर, लिख सकते मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है, तो आंसर हो Yes, गया sir. लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स, और बाहर माइनस साइन है। आगे बढ़ो, तो माइनस साइन हम लॉग का रूल्स के हिसाब से कॉस एक्स के ऊपर -1 लिखेंगे तो वो 1 कॉस होकर सेक हो जाएगा क्या नहीं? यस सर। तो इसी तरह इसका आंसर हो गया, हम क्या बोलेंगे आंसर, लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस सी। देखो ये बहुत बार बार आने वाली फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन Okay, 10x dx, 10x dx, ये फॉर्मूला तरीके जो अपने हम लोगों ने 16 कंप्लीट किया था, स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो हमने बोला था, यही स्टैंडर्ड इंटीग्रल और नंबर बढ़ रहा है, ये 17 वाला नंबर मैंने बोला अभी अभी, इंटीग्रेशन 10x dx बराबर लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। देखो उसकी सेकंड तरीके से भी प्रूफ आ सकती है, और करके मैंने बताया, इंटीग्रेशन 10x dx तो साइन बाई कॉस पहचानते हैं, बराबर है? Yes. अगर हमने इस तरीके से गया कि cos x बराबर t सपोज करो, तो होगा क्या, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। या जैसे हम थियरी वर्क किया था वैसा ही आया। अभी साइन एक्स डी एक्स की जगह हम माइनस डी टी लिख सकते हैं ना, अपर वाला टर्म, यस सर, लिख सकते हैं। और नीचे cos x की जगह t, तो माइनस इंटीग्रेशन 1/t dt हुआ, और 1/t का तो इंटीग्रेशन पता है आपको, लॉग मॉड t। यस सर। माइनस पावर ऊपर चला रहो तो 1/t होगा, 1/t का मतलब 1/cos x यानी sec x, तो log Yes. sec x प्लस c। अभी 16 नंबर 18 नंबर देखो, पेज नंबर 16, इसमें है इंटीग्रेशन cot x dx। cot x dx का आंसर आएगा इंटीग्रेशन क्या, log mod sin x, log mod sin x। प्लस बहुत सिंपल है, जैसे हमने 10x का किया वैसे आगे बढ़ो, Okay. cos बाई साइन अपने आप पता चल जाएगा, साइन x की जगह t सपोज कर लो तो cos x dx होगा, यस सर। ऊपर dt आ जाएगा, नीचे t आएगा, 1/t का इंटीग्रेशन log mod t बराबर log mod sin x। अगर आप रूल लगाना चाहो कि ऊपर cos x है वो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है, तो ऊपर लिख सकते हैं d बाई dx ऑफ sin x, हो गया log ऑफ mod sin x। बोलो, यस सर, क्लियर। अभी उसी टाइप का सम नंबर 19 आता है। 19 में इंटीग्रेशन cos x, बाद में 20 पेज, तो वो रहने दो, अभी हम कल देख लेंगे, मतलब कि परसों 19 से, बराबर है? 18 तक याद रखो, और जो मैंने किया वो यहाँ पे इंटीग्रेशन का सम इलस्ट्रेशन, तो ऐसा सब कुछ लिखो अपनी नोटबुक में। ओके सर। वो हमने एक्स्ट्रा सम भी बताया, वो भी बराबर आंसर सहित लिख लेने का। हाँ, ओके। बहुत प्रॉब्लम हमने कहाँ से शुरू किया आज के, देखो फॉर्मूला सब लिस्ट याद रखो। पहले तो डेरिवेटिव ऑफ सबका फंक्शन का डेरिवेटिव ध्यान में रखो। ओके सर। वो कल लिस्ट बनाओ, पहले लिखो कि डेरिवेटिव रूल, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ऐसा करके। पहला नंबर है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज 0, फिर डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n तो क्या nx रेज टू n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x तो क्या a रेज टू x इंटू लॉग a। इस तरह की जो फॉर्मूला है सब फॉर्मूला एक साथ लिखो। ओके सर। हाँ, इसके बाद उसका वर्किंग रूल है, डेरिवेटिव का रूल्स है, एडिशन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, सब याद रखना है। वो सब कुछ परफेक्ट होगा ना तभी आपको दिमाग में आएगा। डेरिवेटिव कंप्लीट हो और उसके बाद ज्वाइंट कर लो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला। फॉर्मूला हर रोज वो पढ़ना पड़ेगा आपको, आए या ना आए। कल भी परसों भी जब आप यहाँ ज्वाइंट होगा मेरे साथ, तो 10 मिनट पहले आपको क्या करना चाहिए, जो इंटीग्रेशन में हम लोगों ने फॉर्मूला बताई है, मैंने पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो थी ना 16, उसको पढ़ लो। अभी आज मैंने 2-3 फॉर्मूला अभी बताई, 16, 17, 18, तो उसको भी पढ़ो, तभी आपको याद रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर ही एक्सरसाइज आने वाली है। तो एक्सरसाइज का सम कब आएगा,
जब हमको फॉर्मूला बराबर ठीक तरीके से आए तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं आज का वर्क। हाँ पंकज, यस सर। हाँ सब बंद कर दे अपनी तरीके से, पिछले टाइम बंद किया था वैसे। ओके सर, हाँ परसों मिलते हैं, बाय। बाय सर। हाँ हाँ ऊपर आ गए, बंद करिए ना, कंप्लीट थे।